جھنگ کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ٹراما سینٹر کی ایکس رے مشین 2 روز سے خراب، دور دراز سے علاج معالجے کے لیے آنے والے مریض خوار، پرائیویٹ اسپتالوں اور لیبارٹریوں کی چاندی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جنگ میں مریضوں کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی۔ ایکس رے مشین خراب ہونے پر مریض اور لواحقین دربدر، پرائیویٹ لیبارٹریوں سے ایکس رے کرانے پر مجبور، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ لینا بھی محال ہو گیا۔ مریضوں کا کہنا تھا ہاسپٹل انتظامیہ مشکلات کم کرنے کے لیے ایکس رے مشین کی جلد مرمت کرے، جبکہ ہاسپٹل انتظامیہ کا کہنا تھا مشینیں جلد فعال ہو جائیں گی۔ گھنٹے تک آ جانے مشین سیٹ کرا کے تو کرنے حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت اجلاس 10 روز میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا 10 روز میں 404 بجلی چور پکڑے گئے، 14 کو موقع پر دھر لیا گیا۔ بجلی چوروں سے 12,09,000 یونٹ چارج کیے گئے۔ فیسکو جنگ سرکل نے بھی 7 روز میں ہی 127 بجلی چور دھر لیے۔ ایس ای فیسکو شیخ مدثر کہتے ہیں بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کرا دیے، نامزد ملزمان کی گرفتاریاں یقینی بنائی جا رہی ہیں، بجلی چوروں کو کسی صورت میں نہیں معاف کیا جائے گا۔ ادھر چوبا ٹیک سنگھ میں بھی 69 بجلی چور قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے بتایا اب تک بجلی چوروں سے 1,84,000 یونٹ چارج کیے گئے۔ ڈائریکٹ کنڈے لگانے والوں کو 86,82,000 روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا، 23,42,000 روپے ریکور کر لیے گئے۔ عوام نشاندہی کرے، بجلی چوروں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ دوسری جانب فیصل آباد ریجن پولیس فیسکو کی 3 کروڑ روپے سے زائد کی نادہندہ نکلی۔ تھانوں میں ایس ایچ اوز کے ریٹائرنگ رومز میں 24 گھنٹے اے سی چلنے لگے۔ ڈی ایس پیز کے دفتر اور ریٹائرنگ رومز میں بیک وقت چلتے 2 اے سی بھی محکمہ پر بوجھ بن گئے۔ کئی تھانوں میں تفتیشی افسران نے الگ سے اے سی لگا رکھے ہیں۔ بجلی کے بے دریغ استعمال کی وجہ بجلی کا بل کروڑوں تک جا پہنچا۔ عرصہ دراز سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے فیسکو کا بل جمع نہیں کروایا۔ فیسکو نے بھی سرکاری ڈیفالٹرز کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا لی۔ سرکاری اداروں نے فیسکو کو 1,80 کروڑ کے بل ادا نہیں کیے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز نے سرکاری ڈیفالٹر کو فائنل نوٹسز بھیج دیے، کہا اب سرکاری ڈیفالٹرز سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ فیصل آباد میں دار المصطفیٰ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام میلاد کانفرنس۔ قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا، اور پھر بولے نہیں نہیں نہیں، یہ تو تمہیں بیان کرنے کے لیے بتایا ہے، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ اور حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں کہ دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچا ہی پان چھڑیا جس محمد نے اٹھا لیا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم کو، ایسا پیکر تراشا کہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ اکبر، ایسا نورانی پیکر تراشا، ایسا حسین پیکر تراشا کہ زمانے نے جو ایسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اللہ اکبر، لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیٹھے نے اودی خاک پا جا کوئی نہیں۔ اللہ نے جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، جو حسن دیا، جو چہرے کے اوپر چمک دھمک عطا کی، اللہ اکبر، وہ حضور کی شان تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اور حضور اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے۔ تو حضور کسی کام میں لگے تھے کہ حضور کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، اور جب حضور کے رخ نور پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو یہ چرخہ کاٹتے کاٹتے رک گئی۔ تو جب آواز ختم ہوئی، یہ ایسی کھوئی نہ حضور کے چہرے نور پر دیکھتے دیکھتے انہیں چرخہ بھول گیا۔ تو حضور علیہ السلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے، تو جب دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو حضور نے دیکھا تو عائشہ رک کے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ تو حضور نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت ام المومنین نے کہا حضور آج اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا تو اسے اپنے شعر کا مصداق آپ کا چہرہ دکھائی دیتا، جس پہ اس نے اپنے محبوب کے رخساروں پر جو ہے وہ شبنمی قطروں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی اور حضور علیہ السلام کا رخ نور، بلکہ حضور بھی جانتے تھے کہ عائشہ حسن شناس ہے، اور آقا کریم علیہ السلام سے جس طرح ام المومنین پیار کرتے تھے، تو ایک دن حضور نے بھی کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور حضور تشریف لائے، اور ام المومنین موجود تھی، تو حضور نے کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ آج کیسا لگ رہا؟ آج حسن خود ناز میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ تو ام المومنین نے
जवाब दिया वो भी सुनिए। सईदा आयशा ने कहा, हुजूर चादर की स्याही ने आपके चेहरे की सफेदी को निकाल दिया और आपके चेहरे की सफेदी ने आप चादर की स्याही को निकाल दिया। वो हुस्न था हुजूर का, कल कमर लैलतल बद्र लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। कहा क्या पूछते हो, 14वीं रात के चमकते हुए चांद की तरह मेरे हुजूर थे। और हजरत अहसान बिन साबित कहते हैं, नहीं नहीं, तुमने क्या देखा कि खुदा ने तो उस जैसी शक्ल ही किसी की नहीं बनाई। अल्लाह अकबर। वो ऐसा नूर बरसता था चेहरे से, ऐसे अनवार फूटते थे। इज़ा दाहिका यतलाला फिल जुदर, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो हुजूर के चेहरे से निकलने वाली शुआओं से अतराफ की दीवारें चमकने लगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 7 या 8 साल की उम्र का था जब हुजूर मक्के से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाए। और जब हुजूर का विसाल हुआ तो उस वक्त मेरी उम्र 17 या 18 साल थी। तो कहते हैं कि जब हुजूर तशरीफ लाए मदीनातुल मुनव्वरा में तो मैं 7 और 8 साल का था और लोग हुजूर को देखने के लिए गए, तो मैं भी गया। तो हजरत अनस बिन काब कहते हैं, मैंने इस दिन से रोशन दिन जिंदगी में कभी नहीं देखा। और दूसरी बात कहते हैं कि हुजूर के मुबारक चेहरे से जो नूर निकलता था, मदीने की कच्ची दीवारों पर उसकी रोशनी पड़ती थी। अल्लाह अकबर। इब्ने माजा के शायर ने लिखा कि एक तो होता ना कि वैसे ही मानवी रोशनी की बात कर दिया, जनाब आप आ गए तो महफिल में नूर आ गया, उससे तरोताजगी और रोशनी मुराद होती है, तरोताजगी मुराद होती है, फरहत और रूहानियत मुराद होती है। लेकिन इब्ने माजा के शायर लिखते हैं कि ऐसा नहीं था कि हुजूर के आने से एक रौनक आ गई और उसको उन्होंने नूर कहा नहीं। लोगों ने वाकई अपनी आंखों के साथ मदीने की दीवारों पर हुजूर के चेहरे से निकलकर अक्स पड़ते हुए देखा था और हुजूर के चेहरे से पड़ने वाले अक्स से मदीने की कच्ची दीवारें भी रोशनियां बांटी। ये हुजूर के चेहरे के उजाले थे, ये हुजूर अलैहिस्सलाम चेहरे का नूर था। एक सहाबी थे कतादा बिन मलहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन गुजरे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उनको प्यार आ गया तो आके करीब ने अपने दोनों हाथ और हथेलियां कतादा बिन मलहान के चेहरे पर फेर दी और उनका चेहरा रोशन हो गया। अब सुनिए, एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं कतादा बिन मलहान को मिलने गया, हुजूर के विसाल के बाद की कहानी, और वो बहुत बीमार भी थे और बूढ़े भी थे। कहते हैं मैं उनको मिलने गया तो वो चारपाई पर बैठे हुए थे और मैं उनकी पाइती की जानब बैठ गया और मेरा रुख उनके चेहरे की तरफ था और उनका रुख जो है वो मेरी तरफ था। तो उनके घर से कोई फर्द गुजरा तो जाहिर है कि मेरी तो पुश्त थी उधर, मैं तो कतादा बिन मलहान के चेहरे की तरफ देख रहा था और गुजरने वाला मेरी पुश्त से उनके घर का कोई शख्स गुजरा। हज़रत कतादा बिन मलहान का चेहरा हुजूर के हाथों के लगने से इतना रोशन हो गया था, वो फरमाते हैं फ़अबसरतहु फ़ी वजह कतादा, मैंने उस गुजरने वाले के अक्स को हज़रत कतादा के चेहरे में देखा। अल्लाह अकबर। जिनके हाथों के लमस से चेहरे आईने की तरह रोशन हो जाएं, उनके अपने चेहरा नूर की सूरत और आलम क्या होगा। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं घर में कुछ चीज़ सी रही थी कि मेरे हाथों से सुई गिर गई और हुजूर का घर है और दिए में जलाने के लिए तेल भी नहीं, मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहा हुजूर के घर में दिए में जलाने के लिए तेल भी नहीं और मैं परेशान थी कि अब ये गुमी हुई सुई कैसे मिलेगी। इतने में हुजूर तशरीफ ले आए। तो आप सुनिए उम्मुल मोमिनीन क्या कह रही है, फतहुय्यना तिलके बरातो बिशुआए नूरे वजहे, कहती हैं जो ही हुजूर तशरीफ लाए हुजूर के चेहरे से इतनी रोशनियां निकली, इतने उजाले फूटे कि मैंने गुमी हुई सुई को तलाश किया। ये चमक और धमक थी उस चेहरे की कि वो चेहरा दूर बांटता था, वो चेहरा उजाले बांटता था। कल कमर लैलतल बद्र लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। अल्लाह अकबर। कहा मैंने उन जैसा नहीं देखा, ना कभी पहले देखा ना बाद में देखा। बुक चंद बदल शाशानी है, मत्थे चमकती लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमू रखी है मद भरियां। और मेरे इमाम ने कहा कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने फरवे जाफेजा। बुलबुल की इन मुंतहाए परवास तो यही है कि वो किसी को फूल कह दे,
پھول سے آگے بلبل سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال، وہ حسن، وہ خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کو عطا کی۔ تو فرمایا ملیحن، اور تیسری چیز فرمائی مقصرہ، حضور متوازن تھے، اور یہ بہت کمال ہے حضور کے حسن کا ایک نمایاں پہلو۔ چیزوں کا توازن حسن ہوتا ہے۔ کسی کا پیٹ اٹھا ہوا ہو اور جو ہے وہ سینہ پیچھے کی طرف ہو تو اچھا بھلا انسان اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، اور پیٹ بہت زیادہ چپکا ہوا ہو تو پھر بھی خوبصورتی وہ نہیں رہتی۔ تو بہترین توازن کیا ہے؟ سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہو، یہ ہے توازن۔ اب سنیے حضور کا توازن۔ وہاں رسول اللہ تانیہ والا میں استقبال ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد النبی، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو بندہ کر، ہمیں سے کوئی غرض نہیں پڑتی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیا ہے، لیکن یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گئی۔ ساڑھے غوث پاک ہر رات ایک قرآن تلاوت کر دے، اسی سارے غوث پاک دے مننا نہ لے جی کہ نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے آپ ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے۔ لکھا ہے جب من الجنتی والناس پہ پہنچتے صدق اللہ العظیم کہتے تو پھر غیب سے آواز سنائی دیتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے۔ میں تجھ سے کہنے لگا ہوں جو فتویٰ دینا دے لینا مجھ پہ۔ آج امت کو معین الدین چشتی اجمیری کی قوالی تو یاد رہ گئی، روز قرآن پڑھنا یاد نہیں رہا۔ کیونکہ قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن 11ویں ہے لیکن 11ویں والے کا قرآن۔ اور یاد رکھو پتر، جس دلدل میں تو اور میں پھنس چکے ہیں اسی قرآن پاک تو بغیر دے تو نکل سکتے نہیں۔ اس میں پتر ساڈا کام ہے اپنی اسٹیجوں کے قرآن قبلہ شاہ جی بس جی خیر دلان تک جاندی پئی اتنا ٹینشن ہو میں کہڑا کالا جا میرا رنگ ہے میں ایک ہی لگتا شاہ صاحب دی زیارت کرو دلان تک جا رہی دل سے نکل رہی ہے، دلوں میں خامی نہیں بھیجیاں سارے اتوں نکل رہی ہے الحمدللہ۔ ہاں جی ہمارے پاس میں اس دن گن رہے تھے میں بیٹھ کے نا تو میں بہرحال جو گن سکا پاکستان میں سنیوں کے پاس گن کے 9 کاری نہیں۔ نبی آخر زمان سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک مہینے کا آغاز۔ چنیوٹ میں عید میلاد النبی بھرپور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کی تیاریاں عروج پر۔ رنگ برنگی جھنڈیاں برقی کمکوں کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش لگ گیا۔ ہر کوئی اپنے گھر اور گلیاں سجانے کے لیے خریداری کر رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں اپنے گھر کو سجانے کے لیے سامان لینے آئے ہیں۔ ہر سال کی طرح اب بھی بھرپور انداز میں عید میلاد النبی منائیں گے۔ جھنڈے اور بیج لینے آئے ہیں، ہم ہر سال آتے ہیں تو کیک وغیرہ بھی کاٹنے، ربیع الاول آ گیا اس لیے ہم جو ہے نا گلیاں محلے بھی سجاتے ہیں تو ادھر سامان لینے آئے ہیں۔ ربیع الاول کی آمد پر صرف خریدار ہی نہیں بلکہ دکاندار بھی پرجوش ہیں۔ کہتے ہیں پہلے کی طرح اس سال بھی لوگ سرور دو عالم کا میلاد منانے کے لیے بھرپور خریداری کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک لگے گا، انشاءاللہ آگے بھی لگاتے ہیں اور ہم ہر سال لگا رہے ہیں۔ ربیع الاول میں اہل ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی یوم ولادت کو پرخلوص انداز میں منا سکیں، عاشقان رسول کا ہر عمل ریاکاری سے پاک ہو۔ جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں ابھی سے اپنے عروج پر جا پہنچی ہیں۔ بچے بڑے مرد و خواتین سب ہی پرجوش ہیں۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تعزیہ والا آمد، سابق MNA شہادت علی بلوچ مرحوم کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تاندنے والا آمد کچھ عرصہ قبل وفات پانے والے جیالے شہادت علی بلوچ مرحوم کے گھر گئے۔ سابق MNA کی فیملی اور جیالوں کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے جیالوں اور پارٹی ورکرز سے خصوصی خطاب بھی کیا۔ شہادت بلوچ صاحب کا لیگیسی تھا، مشن تھا
उनके बच्चों वो मिशन को, वो लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, आपका नुमाइंदगी करेंगे, मेरा नुमाइंदगी यहां करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उनका नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 18 माह की मसरूफियत के बाद अब अवाम में हूँ, पीपल्स पार्टी का मंशूर लेकर गांव-गांव जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाब की तारीख का ऐलान करे। हम गांव-गांव जाकर कायदे अवाम का मंशूर को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर को साथ लेके चलेंगे। मईशत का मसला हो, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मसला हो, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी का, हमारे लॉ एंड ऑर्डर का, हमारा दहशतगर्दी का मसला हो। बिलावल भुट्टो का कहना था कि उन्होंने बाकी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं। नौजवानों को तालीम और हुनर देकर यूरोप समेत दूसरे ममालिक में भेजा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अशराफिया की सब्सिडी आम किसान को दी जाए तो फायदा होगा। टैक्स एमनेस्टीज देने के बजाय, उनको टैक्स छूट देने के बजाय, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनको डायरेक्ट अरबों रुपया का सब्सिडीज देने के बजाय अब वही पैसा जो आप फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी की सूरत में देते हैं, उसी को अगर आप डायरेक्ट मेरे किसान, छोटे किसानों को देते तो पाकिस्तान की ज़राए मईशत को फायदा। शहादत अली बलोच मरहूम के साहबजादे नदीम खान बलोच ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी और जियालों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। शुगर मिल्स मालिकान की ढिठाई, किसानों की वबाली खून पसीने की कमाई। ज़िले इंतजामिया भी मीटिंग खेलने से आगे ना बढ़ सकी। शुगर मिल्स मालकान जंग के किसानों के करोड़ों रुपए दबाकर बैठ गए। चेन कमिश्नर पंजाब की मालकान को अदायगी की अहकामात भी नजरअंदाज। करोड़ों रुपए की अदम अदायगी पर किसानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। किसान इत्तेहाद बाट ग्रुप की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक रैली। शुरा की महंगाई और इंतजामिया के खिलाफ भरपूर नारेबाजी। जिले सदर सैयद नदीम हैदर शाह का कहना था, पहले ही महंगाई से जीना महाल, पर वक्त अदायगी न होने पर किसान दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। किसान हक बजाने में है, उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान को किसान पाल रहा है, तो अगर पालने वाले की भी आप कदर नहीं कर सकते तो आप फिर किस तरह की हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि आप फौरी तौर पे ये पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करें। रैली में शरीक ज़िले अमीर जमात इस्लामी फरीद मकियाना का कहना था, हुकूमत किसानों को कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही। तालबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जंग ये जो गयूर किसान इस वक्त सड़कों पे सरापा एहतजाज है, मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत के जुल्म और नाइंसाफी का नतीजा है। देखें जी, इस वक्त हमारी शकरगंज जो मेला है उसके पास किसानों का 56 से 60 करोड़ रुपया बकाया वाजिबुल अदा है, जिसका किसी को भी मलाल नहीं है। ना डिप्टी कमिश्नर साहब का, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको भी कोई नहीं है। और हम सरापा एहतजाज हैं और हम किसी सूरत में अब वापस घरों को नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ ना मिला। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब खुद सूरत हाल का नोटिस ले, डिप्टी कमिश्नर को वाजबात की फौरी अदायगी के लिए अमली इक़दाम की हिदायत जारी करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। न्यू कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम के असातिज़ा और तलबा का वासा डिस्पोजल के खिलाफ एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने मुजाहरे में मसीही बिरादरी भी शरीक। फैसलाबाद में न्यू कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम के उस्तादजा और तलबा ने वासा डिस्पोजल के खिलाफ एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने मुजाहरे में तलबा के साथ मसीही बिरादरी भी शरीक हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि डिस्पोजल की बदबू से इलाके की फिजा गंदी हो गई है, जिसमें सांस लेना महाल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक, तो कम से बच्चों से लेके बड़े बच्चे भी हैं, तो वहाँ पे इतनी गंदगी है, वहाँ पे इतनी स्मेल है, इतने बड़े बड़े वहाँ पे उन्होंने ये कुएं बनाए हुए हैं जहाँ पे सारा शहर का गंदा पानी आता है, तो जिससे वो बच्चों की हेल्थ पे, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो मिनॉरिटी लायंस क्लब चेयरमैन अकमल भट्टी का कहना था कि डिस्पोजल जिस्मानी और जहनी तौर पर बच्चों के लिए अजियत का सबब है। चेयरमैन वॉइस ऑफ मिनॉरिटी पाकिस्तान आमिर बशीर कहते हैं, डिस्पोजल से बीमारियां फैल रही हैं। मुतल्लिका इदारे को दरखास्तें जमा करवाई हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ होगी तो एजुकेशन होगी। ग्राउंड रियलिटी पे हम दे चुके हैं कि स्कूल से बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने बाद में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जो कि इतनी बदबूदार फिजा है कि बच्चा वहाँ बैठ के पढ़ भी नहीं सकता। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने डिस्पोजल को आबादी से दूर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में अफसरों के बार बार तकर्रुर तबादले डेली वेजेस मुलाजमीन पर भारी पड़ने लगे। जनरल बस स्टैंड और सिटी टर्मिनल के सैकड़ों मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रुल गए। फैसलाबाद में अफसरान के आए रोज तबादलों से डेली वेजर्स मुलाजमीन के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। ज़राए का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर और सेक्रेटरी RTA के दस्तखतों से तनख्वाहें अदा होती थी जो तबादलों के बायस रुक गई हैं, जबकि कायम मकाम सेक्रेटरी RTA काशिफ रजा आवान ने बताया अगस्त की तनख्वाहों की अदायगी में मजीद एक हफ्ता लगेगा। DRTA का ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से, और अभी कोई 2-3 दिन पहले जो है मेरे पास एडिशनल चार्ज का है, और डे फर्स्ट हमने उनके लिए जो है वो फाइल मूव कर दी है जिसमें को सिग्नेटरी का तयन होना है, और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि विद इन अ वीक ये सारे मसाइल हल कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का फंड्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो सका। रवा माह की तनख्वाहें अदा करना मुश्किल होने लगा। ज़राए का कहना है कि अभी तक इस सहमाई के फंड्स नहीं मिले। कंपनी हुक्काम को फीस आयद करने की इजाजत भी नहीं मिल सकी। लारी अड्डा और सिटी टर्मिनल मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए नए अफसरान के ताहाल बैंक बायोमेट्रिक का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सका। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41। एक तरफ महंगाई का जोर तो दूसरी तरफ दिहाड़ी न लगने का रोक। सरकारी इमदाद पहुंची न रोजगार मिला। मिलत चौक फैसलाबाद में बेरोजगार दिहाड़ी लगने से मुंतजर खड़े हैं। महंगाई का तूफान, मजदूर हुए बेहाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और बिजली के बारी बिल मजदूर तबके के लिए जहर कातिल बन गए। फैसलाबाद में मिलत चौक पर मजदूरों की यास लिए बेरोजगारों की बड़ी तादाद खड़ी नजर आती है। मजदूर कहते हैं 4 रोज से दिहाड़ी नहीं लगी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। एक हफ्ता आ गया कि एक दिहाड़ी लगी है तो चौथा दिन वापस जा रहे हैं। कल चावल मंडी से वो लैके ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुजारा किया, रोटी बन के लाई दी ਉਹੀ लाई दी वापस। की करिए, कौन आंदा, कोई कहना 900 ले लो, कोई कहना 1000 ले लो। बहुत औखा गुजारा होਣ ਡਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ 200 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। उदास और मायूस बेरोजगार दिहाड़ीदार रोजाना रिस्क की चौखट पर दस्तक देते हैं, मगर महंगाई ने इनके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। इनका कहना था कि कई मजदूर खुदकुशियां करने पर आ गए हैं। फाके काटना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ 10 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਅਰਸ਼ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਟਾ 650 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ 1300 ਰੁਪਏ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਕਲੀ ਭਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 2 ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਉਹ ਬਸ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਆਂਦੇ ਪਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। रोजी रोटी की उम्मीद लिए चौकों चौराहों में पहुंचने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों ने नागरां हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने और हालात बेहतर करने की अपील की है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मोहम्मद अली। डॉलर की कीमतों में मुसलसल 2 हफ्ते से कमी, मगर IT सेक्टर पर ताहाल मुस्बत असरात नजर न आए। सदर रेक्स सिटी गुलाम हुसैन का IT मसनूआत की कीमतों में कमी और इम्पोर्ट बहाल करने का मुतालबा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी के बावजूद महंगाई कम ना हो सकी। सदर रेक्स सिटी और एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI गुलाम हुसैन का कहना है सबसे पहले महंगाई कम होने के मस्बत असरात IT सेक्टर में नजर आने चाहिए थे, जिसके अभी तक हम मुंतजिर हैं। 21वीं सदी के इस जदीद दौर के अंदर जो सूरत हाल है मुल्क की, हमारे की ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी वक्त है, हम अपने छोटे बच्चों के लिए इम्पोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं इसको ख़त्म करें। ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी कर दें कि आसानी के साथ मिलनी चाहिए, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा इस चीज़ का। कंप्यूटर प्लाजा रेक्स सिटी के सदर गुलाम हुसैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि IT मसनूआत की कीमतों में कमी और इम्पोर्ट को बहाल किया जाए ताकि IT सेक्टर को मजबूत किया जा सके। अगर हम सॉफ्टवेयर जो है एक्सपोर्ट करेंगे वो तब ही कर सकते हैं जब हमें जो पोर्ट है इसके ऊपर आसानियाँ फ्राहम हो। ऐसा नहीं हो रहा, पर कंटेनर बंदे की पहुंच से बाहर हो चुका है। कोई चीज़ नहीं है जो इंपोर्ट हो रही है इस वक्त। और मैं साथ ही साथ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ पावर केबल तक यहाँ पर दस्तयाब है या बनती है वो भी इंपोर्ट होती है। कोई एक चीज़ भी नहीं है जो इंपोर्ट नहीं होती। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल सनत में नई सरमायाकारी ख्वाब बन गई। रवां साल नई टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद में 50% कमी। अदारे शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक 74% कम मशीनरी दरामद हुई। टेक्सटाइल से वाबस्ता अफराद माली मुश्किलात के साथ गुज़िश्ता महीनों में डॉलर की ऊंची उड़ान से भी परेशान रहे। मशीनरी दरामद की शरह में गुज़िश्ता माली साल 40% से जायद, जबकि रवां माली साल के आगाज में 70% अबूर कर गई। मशीनरी दरामद में हैरत अंगेज कमी इंडस्ट्री के जवाल की मुंह बोलती कहानी है।
रवां 2 महीनों में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद में 74% कमी आई। गुज़िश्ता माली साल के इन्हीं 2 महीनों में दरामदार $93,000 थी, जो कम होकर $23,000 रह गई। नई मशीनरी से जिद्दत समेत इंडस्ट्रियलाइजेशन को ब्रेक लग गई। जो कंपल्सरी आइटम है न्यू मशीनरी फॉर द टू मीट द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में आपको कम्पीट करने के लिए जदीद मशीनरी लानी पड़ेगी। जब आप जदीद मशीनरी लानी वो भी बंद कर देंगे तो फिर आपका सिस्टम पहिया जो है वो रुक जाएगा। हमारी इंडस्ट्री स्पेशली जो छोटी इंडस्ट्री एसएम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्टेड है। अगर मशीनरी लेटेस्ट मशीनरी शटलिस्ट वगैरह जो हैं वो नई मशीनें इंडक्ट होंगी हमारी इंडस्ट्री के अंदर, तो डेफिनेट बात है वो अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी और जो बायर जो हैं वो उसको हम हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। मशीनरी की दरामद में कमी के असरात मजदूर पर भी मुरतब हो रहे हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए किसी तरह भी खुश आइंद नहीं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में महंगी पेट्रोलियम मसनूआत से तंग शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स में दिलचस्पी। पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कीमतों में कोई फर्क है या नहीं, जानते हैं फसी नकवी की रिपोर्ट में। जरूरत इजाद की माँ है, ये मुहावरा फैसलाबाद के शहरियों पर सादिक आता है, जहाँ शहरियों ने पेट्रोल के रोज बरोज बढ़ती कीमत से तंग आकर इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदना शुरू कर दी है। शहरियों के इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तरफ बढ़ते रुझान पर दुकानदार का कहना था रोजाना 1 से 2 बाइक्स बिक जाती हैं। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स में दिलचस्पी बढ़ गई है। कीमत भी आम CD70 जितनी है। 2.5 साल बाद सिर्फ बैटरी की तब्दीली पर मामूली खर्च आता है। पेट्रोलियम की कीमतों ने लोगों को मजबूर कर दिया इस तरफ आने में। ठीक है, ये जो बाइक है ये इलेक्ट्रिक बाइक है टोटल, इसकी वारंटी भी है और लोग इसको काफ़ी लाइक कर रहे हैं। जैसे कि अब एक चार्ज में ये बाइक जो है इसका नाम है मेरान, एक चार्ज में ये 40 से 50 किलोमीटर चलती है और 70 से ज़्यादा एवरेज वाली वो खड़ी आज़ादी उसका नाम है, वो आपको एक चार्ज में 70 से 80 किलोमीटर देती है। गुज़श्ता 10 माह से इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाने वाले एक शहरी ने कहा, जब से ये बाइक ली है पेट्रोल की झंझट से आज़ाद हो गया हूँ। बाइक सिर्फ सुबह एक बार चार्ज करना पड़ती है, फिर बाकी सारा दिन निकल जाता है। 10 माह से कोई नुक्स भी नहीं निकला, जबकि पेट्रोल आए रोज महंगा हो रहा है। ठीक है, बेहतरीन है, पेट्रोल तो जान छुट गई है। पेट्रोल एडा महंगा कौन अफोर्ड कर सकता, इस करके ये ले लिया। पेट्रोल तो जान छुट गई, ये तो मोबाइल भी नहीं पैंदा, बस चार्ज करो 2-3 घंटे से चलाई जाओ 60 किलोमीटर तक। पेट्रोल महंगा ही बहुत हो चुका है, तो ये कह लें कि अब मोटरसाइकिल का जो खर्चा है वो जो है कार जितना हो गया है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि इसका मुतबादल किया जाए और बिजली पे इसको लिया जाए, क्योंकि ये काम उससे मुकाबले में सस्ता है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अल्टरनेट की तरफ जाया जाए। जब एक ही कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोल बाइक दस्तयाब हों, तो फिर क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदी जाए, जो माहौल दोस्त भी है और जेब के लिए हल्की भी। पुलिस का है फर्ज खिदमत आपकी। चिन्योट पुलिस ने अपना ही मोटो मजाक बनाकर रख दिया। चिन्योट पुलिस की सुस्ती, लापरवाही या खास मसरूफियात, डकैती, चोरी और मुख्तलिफ वाक़यात में सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, ट्रक और ट्रैक्टर, ट्रालियां बरामद हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस स्टेशन और सरकारी मालखानों में 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल, दर्जनों कारें और दीगर कीमती गाड़ियां मौजूद हैं। ताहम पुलिस की जानिब से व्हीकल असल मालिकान तक न पहुँचाई जा सकी, जिससे ये अब नकारा हो चुकी है। राय के मुताबिक लावारस गाड़ियों से कीमती इंजन, टायर, अलाय रिम और दीगर कीमती स्पेयर पार्ट्स चोरी होने की भी इतलात है, मगर पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दूसरी जानिब वारदातों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गंवा बैठने वाले शहरी थानों में ज़लील खुखार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है पुलिस बरामदशुदा गाड़ियों को मालकान के हवाले करे, अगर लावारिस हैं तो नीलामी के लिए अदालत के सुपुर्द करे, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस कहती है फॉरेंसिक के बाद गाड़ियों की सुपुर्दारी करवाई जाएगी। पुलिस को बरामदशुदा गाड़ियों को असल मालकान तक पहुँचाना चाहिए, ताकि पहले से परेशान हाल अफराद की दाद रसी हो सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। समुद्री में साबिक रुकन कौमी असेंबली शहबाज बाबर के डेरे पर इज्तिमाई शादियों की तकरीब। दीन इस्लाम बेवाओं, यतीमों, गरीबों, मोहताजों और बेकसों के साथ गमखारी और हमदर्दी का हुक्म देता है। वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मखलूक खुदा की खिदमत में लगे हुए हैं। ऐसे ही मुस्तहिक अफराद का बोझ बांटने के लिए करमावाला हवेली में 21 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। तकरीब में 17 मुस्लिम और 4 गैर मुस्लिम जोड़ों की शादियाँ कराई गई। दुल्हनों को सलामी के साथ जहेज भी दिया गया। शहबाज बाबर का कहना था कि 18 साल से इज्तिमाई शादियाँ करवा रहे हैं। तमाम दोस्तों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज आके हमारे इस महफिल में शिरकत की है। आज मैं 21 बच्चियों की माशाल्लाह यहाँ से अल्लाह के हुक्म से अपने घरों को रुखसत होंगी और ये रब का करम है कि और मैं कहूँगा तमाम दोस्तों का, ये मेरे भाइयों का, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इस घर को अपना घर समझते हैं।
इज्तिमाई शादियों की तकरीब के मौका पर दुल्हा दुल्हन के अजीज़ व अकारब ने भी शिरकत की। बारातियों के लिए खाने का इंतजाम किया गया तो दुल्हनों को जहेज और सलामी भी दी गई। हमारी शादी आज हम बहुत खुश हैं और मेरे साथ और ज़्यादा और लड़कियों को भी शादी हुई है। तो रबीउल अव्वल का महीना है और दिन भी आज पहली तारीख है रबीउल अव्वल की। तो जिन्होंने हमारी शादी की है उनको हम अल्लाह पाक ज़्यादा अजर दे और उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। महंगाई के इस दौर में इज्तिमाई शादियों से जहां 21 जोड़ों ने नई जिंदगी का आगाज किया, वहीं वालिदैन के सर का बोझ भी हल्का हुआ। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। टिप्स कॉलेज डी ग्राउंड फैसलाबाद में एजुकेशन एक्सपो। टिप्स कॉलेज डी ग्राउंड फैसलाबाद में एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर्स टिप्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अहमद जब्बार और जिशान आबिद ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल उमर शेख, असातिज़ा और तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। एक्सपो में टिप्स कॉलेजेस और यूनिगाइड समेत मुतअद्दिद अदारों के स्टॉल्स लगाए गए। तलबा की दिलचस्पी काबिले दाद थी। फैसलाबाद में किसी भी कॉलेज की तरफ से ये पहली एफर्ट है जो एक्सपो जो है वो अरेंज की गई है। इससे पहले जितनी भी एक्सपो अरेंज की जाती हैं वो एक मुख्तलिफ जो है वो कोई मीडिया की तरफ से अरेंज की जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट एवर एक्सपो इन द फैसलाबाद। अकाउंटेंसी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर और कंप्यूटिंग के अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ चुकी हुई है। मीडिया के सब्जेक्ट्स जो हैं वो अब बिल्कुल इस लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं कि उसके बगैर किसी भी हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमुका ने भी एक्सपो का दौरा किया और तलबा को मुस्तकबिल के मौके मुहैया करने वाले ऐसे इवेंट के इनेकाद को सराहा। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये कॉलेज लेवल पे फैसलाबाद की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कॉलेज ने अपने तौर पे इनका जो ग्रुप है उन्होंने कॉलेज के अंदर एक ऐसी खूबसूरत शानदार एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया है। एक्सपो में तलबा को इंटरमीडिएट के बाद अंदरून और बैरून मुल्क तालीमी मौक़ों पर आगाही दी गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ताज़ा बरादरी और इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। वाला फैसलाबाद रोड पर ब्रांड सिटी मॉल्स का मंसूबा शुरू कर दिया गया, जिससे ताजर बरादरी और डेवलपर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। सीईओ मोहम्मद उमर और मैनेजर अवैस का कहना था कि ब्रांड सिटी मॉल्स में बड़े ब्रांड, कमर्शियल प्लाजे एंड ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, लग्जरी शॉप्स, मसाजिद शामिल हैं। स्ट्रीट लाइट्स, टफ टाइल्स, स्पेशल पार्किंग, 24 घंटे सिक्योरिटी का इंतजाम होगा। मंसूबे काटी एमए और तमाम एनओसी मंजूर शुदा हैं। मैचेस और ब्रांड के इश्तेहार चलाने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं। कुल्डियांवाले की तारीख में यह पहला प्रोजेक्ट है जो कि हम सारे एनओसी लेकर तमाम मुतलका महकमों से हमने अप्रूवल्स करवाई हैं और हमारे सीईओ साहब का, मियां उमर साहब का ये विजन है कि हमने यहाँ पे तमाम ब्रांड्स लेके आने हैं। डेवलपर्स का कहना था कि कारोबारी हजरात को इस मंसूबे में दिलचस्पी लेनी चाहिए। खुलियावाला में पहली दफा ऐसा मंसूबा बन रहा है जो नहायत फायदेमंद साबित होगा। खुले रोड भी बहुत कुशादा हैं और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक सिटी है और इसके अलावा हमने कुछ प्लाजा यहाँ पे खरीदे हैं और जल्द इंशाल्लाह बनाने हैं और यहाँ पे ब्रांड के लिए हम मंसूबा है और ऐसा मंसूबा यहाँ पे करीब कहीं भी नहीं है। तो इंशाल्लाह रोड के ऊपर है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा यहाँ से। सीईओ ब्रांड सिटी मॉल्स मोहम्मद उमर का कहना था इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद अफराद को अच्छे डिस्काउंट के साथ ब्रांड सिटी मॉल्स का हिस्सा बना लिया जाएगा। कैमरामैन जुनेद के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसला। न्यूज़ स्टूडियो से कितना है।